अरे कोई मौलाना को फेंक रहा है चलती ट्रेन से, तो कोई 16 साल के लड़के की हत्या कर रहा है। भाई मुसलमान लोग हैं लेकिन है तो हमारे भाई ना ये लोग भी। क्या बोला? हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान अपना भाई है, फिर किस चीज के लिए ये लड़ाई है? अपने फायदे के लिए हमको मत लड़ाइए, हिंदू मुस्लिम मान करके नफरत मत फैलाइए। देश की आजादी के लिए सब साथ चलते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ लड़ते थे। एकता में बल था तभी आजादी मिली थी, और आज एक दूसरे के दुश्मन बने फिरते। अरे मौलाना को फेंक दिया चलती हुई ट्रेन से, मुसलमान था लेकिन था तो अपना भाई। ऐसी भी क्या नफरत हो रही मुसलमानों से, जो चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया भाई। कुछ राजनीति करने वाले नफरतें फैलाते हैं, तुमको और हमको आपस में लड़ाते हैं। इनको बस अपनी ये कुर्सी प्यारी है, अपनी कुर्सी के चक्कर में ये लोग हमको लड़ाते हैं। भारत देश को देखो किधर किधर जा रहा है, और आज भी हम लोग आपस में लड़ते जा रहे हैं। सवाल You are not born only to survive. You are born to live like a human being. Article number 21, right to life and personal liberty. The Constitution says your life is not a gift from the government, it is your right. Article 21 of the Constitution of India is one of the most powerful rights in the Constitution. It says no person can be deprived of life or personal liberty except according to law. Simple meaning, no government, police, or system can take away your life or freedom without a legal and fair process. But Article 21 is not only about staying alive. The courts have said that life means living with dignity, freedom, privacy, education, clean environment, food and shelter. Because a person is not truly alive if they live in fear, hunger, humiliation, or without basic rights. Harsh reality. Many people are alive, but not living freely. Some are controlled by fear. Some are denied dignity. Some are treated like they do not matter. That is why Article 21 is so important, because it reminds the system a human being is not just a body. A human being has dignity, freedom, and rights. Final line. Article 21 does not just protect your life. It protects your right to live like a human being. Your sex, caste, religion, or where you're born should never define your rights. Article number 15, prohibition of discrimination. Your gender, caste, religion, or birthplace should never decide your rights. In the Constitution of India, every citizen is given equal respect and protection. But reality has been different. People have been judged and treated unfairly because of caste, religion, gender, birthplace, social category. Some were denied opportunities. Some were excluded. Some were treated as less than equal. That is why Article 15 exists. It clearly says the state cannot discriminate against any citizen on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth. No unfair treatment, no bias, no discrimination. But there is a deeper reality. Equality is not just about stopping discrimination, it is also about correcting it. That's why the Constitution allows special provisions for women, children, socially and educationally backward classes, SC and ST communities, because real equality means lifting those who were pushed down. Final reality. Society created divisions. The Constitution tries to remove them. Article 15 is not just a rule. It is a stand against discrimination. मैं ओदी जनता विरोधी, मैं ओदी जन जन विरोधी, मैं ओदी जनता विरोधी, मैं ओदी जन जन विरोधी। झूठ थी बात, मेरा 56 इंची सीना है। हवाबाजी करके ही मुझको जीना है। जनता का सुख चैन मैंने ही तो छीना है। पब्लिक मैंने अपने हाल पर छोड़ी। मैं मोदी जनता विरोधी, मैं मोदी जन जन विरोधी, मैं मोदी जनता विरोधी, मैं मोदी जन जन विरोधी।
कहता हूँ खुद को विश्व गुरु, पर तेल खरीदूं ट्रम्प के थ्रू। अडानी का केस और एप्स्टीन फाइल छीन कर ले गए मेरे चेहरे की स्माइल। अपनी क्रेडिबिलिटी मैंने खुद ही खो दी। मैं ओदी जनता विरोधी, मैं ओदी जन जन विरोधी, मैं ओदी जनता विरोधी, मैं ओदी जन जन विरोधी। जनता के पैसों से मैं घूमता विदेश, सूट बूट पहनूं करता हूँ ऐस। कोई पूछे सवाल तो कर देता हूँ केस, बंद करूंगा डेमोक्रेसी। मैं ओदी जनता विरोधी, मैं ओदी जन जन विरोधी, मैं ओदी जनता विरोधी, मैं ओदी जन जन विरोधी। मैं बदतमीज हूँ, बदलिहाज हूँ, बदनसीब हूँ, शौक से मैं मानती हूँ मुझ में है कम दुनिया के हर किस्म के रस्म। तुम खास हो, होशियार हो, तो क्यों हो हमसे ओ बेशरम? तो क्यों हो मर मिटे हम पे तुम, तो क्यों हो थोपते खाब यूं? तुम लाजवाब हो, बेमिसाल हो, बाकमाल तुम हो ये सब, पर सच तो ये तुम ओढ़ते वो एक नकाब, वो एक सरफ। मैं राख हूँ, मैं खाक हूँ, बेबाक हूँ, चालाक हूँ, मुझ में न खौफ इंसानों का या किस किस्म का भी ना है गम। बदले थे मैंने मेरे शौक, कभी नहीं तोड़े थे मैंने मेरे ख्वाब सभी। उम्मीदों में जीती रही हर पल में, मैंने सपनों से लिख दिया काम मेरा, अरमान मेरा वो नाम मेरा। मैंने खोल दिया मानो सारा राज मेरा, एहसान था वो रब का मुझ पर, मैंने सच्चाई से पाया है मकाम मेरा। बांधी थे तुमने मेरे पाँव सभी और कुचला था सारा ही गुरूर मेरा। जमाने से लड़ी थी तो हर पल में तुमने हंस के उड़ाया था मजाक मेरा। रोकते थे तुम सारे रास्ते मेरे, मैंने खुद से बनाया है मकान मेरा। सवालों से घिरी थी तो हर पल में मैंने जवाबों से पकड़ा था हाथ मेरा। तो आजकल हमारे देश में क्या चल रहा है ये सुनाता हूँ। खान सर फैजल खान बन गए, बिन रसीए उड़ान भर गए, बिरयानी की रिकवरी खातिर कैसे इंसान मर गए। एलपीजी के दाम बढ़ गए, टावर रातों रात खड़ गए, मंदिर से कुछ लौट रहे, रास्ते में खुद भगवान मिल गए। कॉकरोच फैल रहे भारत में, एथनॉल या गन्ने का रस है, हुए क्रोध में युवा पेपर है, ना ट्रेन मिले ना ही बस। उड़ गए रक्षक वायु में, पर लौटे तो नष्ट विमान, नकली इंजेक्शन माँ बनने से पहले ही ले गए जान। The uneducated Prime Minister keep telling us India is becoming Vishwaguru, a global power and one of the world's largest economies. But if our rivers are polluted, our air is toxic, and our forests are disappearing, where is the development? Article 48A, Protection and Improvement of Environment. We call rivers sacred, pray to nature and worship animals. Yet polluted rivers, toxic air, disappearing forests, and dying wildlife have become our reality. India dreams of becoming a developed nation. We talk about economic growth, global rankings, and becoming a world leader. But the Constitution asks a simple question. What is the value of development if the environment that sustains life is being destroyed? What does Article 48A say? Article 48A of the Constitution of India directs the state to protect and improve the environment, safeguard forests, protect wildlife. The Constitution believes that clean air is important, clean water is important, forests are important, wildlife is important, because human life depends on nature. Without a healthy environment, no society can truly prosper. But in real life, air pollution affects millions every day. Rivers and lakes are becoming polluted. Forests continue to shrink in many areas. Wildlife habitats are disappearing. Nature does not need humans to survive. Humans need nature to survive. Article 48A reminds us that real development is not just about bigger economies and taller buildings. Real development means protecting the air we breathe, the water we drink. $295 fake encounter. ओके
साजिशों से पागल करार देते हो, सीने में 5 गोलियां उतार देते हो, गैंगस्टरों को बैठ के खिलाते जेल में, देशभक्त एनकाउंटर में मार देते हो। ना जीते जी पे साथ देता कोई इंसान, मरने के बाद बना देते भगवान। तेरे कर्मों की दुनिया में कीमत है क्या, प्रूफ करने के लिए देनी पड़ती है जान। भरत तिवारी ने सिखा दी एक बात कि रखना तमन्ना सरफरोशी की, यहाँ सब मांगते तो हैं भगत सिंह सी औलाद, पर पैदा होना चाहिए वो पड़ोसी के यहाँ। फिर एक बार बोलता है ओम वीर के जस्टिस नहीं रिवेंज लेना है, गर देश में जो ऐसे ही ये चलता रहा तो फिर से गुलामी वाली डेट मिलेगी। यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलेगी, हर कदम कदम रिग्रेट मिलेगी। सच बोलने से तेरे बैरी बढ़ेंगे, तेरी बढ़ती तरक्की तेरी डेथ बनेगी। भाई रील नहीं रियलिटी है ये। नोटबंदी काला धन 15 लाख। छोरे ने अपने गाने से मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। कौन है हरियाणा छोरा और क्या है इसके बोल? नोटबंदी काला धन 15 लाख। झूठी सारी बातें बस मन की बात, जाति धर्म के नाम पे जातिवाद, हिंदू मुस्लिम वोट बैंक दंगा फसाद, गौ माता की हत्या बूचड़ खाने में, मालिक मस्त मलंग है चंदा लाने में, रेल तेल गैस सारे महंगा बेचा, जल जंगल जमीन का भी सौदा ठेका, जनता के सीने में खंजर अपना तू घोप क्या, घोप 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 क्या क्या, घोप 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 घोप। ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, आँख खोल मेरी जान हिंदुस्तान खतरे में। हम दुश्मनों को छोड़ के आपस में लड़ रहे, हिंदू मुसलमान करके फिर से क्यों बढ़ रहे। मुझे डर ये संविधान बदलेंगे, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम बदलेंगे, अलामा मोहम्मद इकबाल बदलेंगे, हजरत मोहिनी इनकलाब जिंदाबाद बदलेंगे। क्या बोल रही थी वो अंजना कश्यप? सुनो रे स्टूडेंट लोग, 2 कौड़ी के टीचर हैं, YouTube वाले फीचर हैं, ये बोल वो रहे हैं जो खुद साले लीचर हैं। स्कूल पहले मंदिर था, स्कूल आज स्कैम है, सब मिलता है वहाँ मिलता नहीं ज्ञान है। दिन रात एक करके पढ़ा रहे, खान सर क्यों तेरी नजर में बंदा वो बहन है। सच बोलने वालों से फटी है ना तेरी TRP, आज घटी है ना तेरी। बच्चे भी ज्यादा सुन रहे YouTube के टीचर का, इसीलिए बुद्धि हटी है ना तेरी। पढ़ लेगा भारत तो सवाल करेगा, पता चले सच तो बवाल करेगा। अच्छा काम जब खटकेगा तब न्यूज के जरिए दलाल बोलेगा। 2 कौड़ी के टीचर हैं, YouTube वाले फीचर हैं, ये बोल वो रहे हैं जो खुद साले लीचर हैं। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। जात में ये बांटते हैं, बांट के ये काटते हैं, कटने वाले खाट पे हैं, इनकी मौज रात में है। लाल बत्ती वाली गाड़ी ग्लास इनके हाथ में है, राजनीति में है चोर पुलिस इनके साथ में। मेरी बातें तुमको सच नहीं लगती, सच्ची बातें तुमको यारा बच नहीं सकती। मुझसे ना समझ है दुगनी मेरी एज के, एक पैर कब्र में ये भूखे हैं दहेज के। बेटियों को मारते, बेटियां ना पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते। लड़कियां पटा के उनको बंदी बोलते हैं, और जो राजी ना हो उनको बोलते हैं। बाबर रोज माँ पे ठोस हाथ जो उठाएगा, बेजुबान बोलने से पहले सीख जाएगा कि मर्द तब बनेगा जब तू और दे दबाएगा। सोचिए रही तो जल्दी देश डूब जाएगा। No one can buy you, sell you, or force you to work. That is your constitutional right. Article number 23, prohibition of human trafficking and forced labor. Working by choice is a job. Working by force is a crime. Let's understand this clearly. If someone tells you, you must work, you cannot leave. You will not be paid properly. You have no choice. That is not employment. That is exploitation. Article 23 of the Constitution of India says one simple and powerful thing. No one can force you to work. No one can buy or sell you. This includes human trafficking,
forced labor, bonded labor, working because of debt or pressure. Simple reality. If you are working by choice, it is a job. If you are working because you are forced, scared, or trapped, it is illegal. Even if a person is poor, even if they have no money, no one has the right to control their life or labor. Harsh reality. Some people still work without freedom. Some are trapped in debt. Some are controlled by fear. They cannot leave. They cannot refuse. And that is exactly what Article 23 is made to stop. Final reality. Freedom means you have a choice. If you cannot say no, you are not free. That is why Article 23 exists. No human is a slave. No human is for sale. Every human deserves freedom and dignity. मेरे प्यारे देशवासियों, संविधान ने आपको केवल जीने का अधिकार नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार भी दिया है। अनुच्छेद 19 आपको बोलने, सरकार से प्रश्न पूछने और शांतिपूर्ण विरोध करने की शक्ति देता है। याद रखिए, लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। So be educated, be organized, and always be aware of your rights. अलार्म अभी बजा नहीं। किसान अभी मरा नहीं। अभी ये ब्रिज गिरा नहीं। खिलाड़ी अभी हारा नहीं। और अभी यहाँ रेप हुआ नहीं। ब्रिज गिरने दो, किसान को आत्महत्या करने दो, मेडल हारने दो और रेप होने तो दो। अलार्म थोड़ा बजने तो दो। अलार्म बजे तो हम उठेंगे, फिर काफी काम है हमें। कैंडल मार्च यहाँ, हड़ताल वहाँ, व्हाट्सएप पे आग लगाना है, फेसबुक पे गुस्सा दिखाना है, ब्लैक फ्राइडे हंगर स्ट्राइक काला बैंड पहनना है, एक्टिविज्म को जगाना है। पर फिलहाल अलार्म बजा नहीं। अगला अलार्म बजने से पहले जागो 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 रे। भाई वो वाला भारत में आए दिन रेप हो रहे। ओके। भारत में आए दिन रेप हो रहे, बेटा बेटी दोनों अनसेफ हो रहे। सारी सोती सरकारें, सारे नेता सो रहे, औरतों के लिए रोड ब्लडी मैप हो रहे। फट जाएगा कलेजा अखबार उठा लो, छोड़ धीमी आवाजों को ललकार उठा लो। कहाँ मिलेगा इंसाफ, ये कानून अंधा है, छोड़ कैंडलों को हाथ तलवार उठा लो। भारत की मीडिया भी बिक चुकी है, इनकी सच्चाई आज दिख चुकी है। सारे जज बिक गए, सारे बिके हैं वकील, जो थी बची अदालतें वो भी बिक चुकी हैं। बेटा तेरी बातें जो ना समझे ये लोग, तो आने वाले वक्त में पछताएंगे। आज ना जगे तो कल होगी बहन तुम्हारी, उसके चेहरे पे बुझी सिगरेट मिलेगी। यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलेगी, तेरा नाम लेके गालियां गरेट मिलेंगी। सच बोलने से लोग अनफॉलो करेंगे, तेरी बढ़ती तरक्की तेरी डेथ बनेगी। भाई एक वो वाला और सुना दो। कौन सा वाला? जो ना कभी गीता और कुरान पढ़ते। भाई कल के लिए भी कुछ छोड़ दो, कल पक्का सुनाएंगे। पक्का है ना भाई? वो प्रॉमिस नो। हाँ सर, आप ही गलत हो, हद से ज्यादा अच्छा होना अच्छा नहीं है। क्या बोलती पब्लिक?
इतनी अच्छाई की हमें आदत नहीं है, टीचरों की होती है इबादत नहीं है, चुपचाप पढ़ाने का काम करते, यहाँ सच बोलने की इजाजत नहीं है। गलती करो लोग इंतजार में रहते हैं, विपरीत नहीं ये बहाव में बहते हैं। कल तक जिन्हें ये कहते थे खान सर, आज ये कमीने फैजल खान उन्हें कहते हैं। पढ़ रहे थे सर लोग जैसे तैसे, क्यों इन गरीबों से कम लिए पैसे? मुफ्त में पढ़ाने का गुनाह आपने किया है, ये बहुत बड़ा क्राइम अपने देश में। वैसे जैसे शिवाजी तो बॉस, वो था सोशल कॉज, सच की राह पे था हुआ उसका लॉस, बिकॉज वो नहीं चाहते कि फ्री में लोग पढ़े। फिर गलत राह चुनी उसने, सिक्का करके टॉस, सोचा याद मैं दिला दूं, उसका टूट जाता घर, निकले करने भला गला कट जाता सर। नेकी वाली राह की बड़ी मुश्किल है डगर, खुद ब खुद जाती जीते जी कबर। लोग शक्ल नहीं अकल नहीं नस्ल देखते हैं, उन्हें जल जाते लोग जिन्हें सफल देखते हैं। कर्म नहीं लोग तेरा धर्म देखते हैं, बेटा सच्चाई नहीं बस भरम देखते हैं। You're a Hindu, Muslim, Christian, it doesn't matter. First, you are human, and freedom belongs to everyone. Article number 26, freedom to manage religious affairs. Hindu, Muslim, Christian, it doesn't matter. First, you are human, and every religion has freedom, but not the right to control others. Article 26 of the Constitution of India gives religious groups the right to manage their own religious matters. What rights does it give? Every religious community can establish and maintain religious institutions, manage its own religious affairs, own and manage property, run their institutions according to their beliefs. Simple meaning. Every religion has the freedom to run its own system, but this freedom is not unlimited. It must follow public order, must morality, law. Reality says different religions exist, different beliefs exist. But problems begin when one group tries to control another, one belief tries to dominate others. That is not freedom, that is interference. Article 26 exists to protect freedom, not domination. Final reality, follow your religion freely, but don't interfere in someone else's freedom. Because in the end, religion gives identity, but humanity gives equality. क्या बोलते पब्लिक, बहुत मर्डर कर रहे हो ना, पूरा पाप बढ़ गया है। हो इस धरती के ऊपर किन्ने लोग सारे पापी, रोज करी जांदे पाप कदे मांगे नहीं माफी। सब लोग बने खूनी, अब रहा क्या है बाकी, एक दूजे के लिए दिल में द्वेष भरा काफी। मैंने देखा सबका मन मुझे भ्रम में मिला, सच्चा प्यार करने वाला मुझे ड्रम में मिला। बर्थडे पे सरप्राइज देने जो गया, वो नौजवान लड़का घटनाक्रम में मिला। छोटी छोटी बहस पे ये मार देते चाकू, कल ट्रेनों में घूम रहे पढ़े लिखे डाकू। साला जो मिला हाथ में हथियार बना देते, सबकी मानसिकता आज क्यों बनी है लड़ाकू। मेरे देश की धरती चूतियों की भर्ती, सच लगी बात तो फिर हाथ कर वर्ती। नरधम में लोग सारे बटे हुए कटे हुए, हिंसा ही हिंसा क्यों रगों में उतरती। कैसा ये दौर जहाँ हर कोई फ्रस्ट्रेट, घाव वैसा मारे ना काम आए फर्स्ट एड। ना दिल यहाँ दिल ना किसी को है फिल, हुआ लोगों को समझना बहुत मुश्किल। इस धरती के ऊपर किन्ने लोग सारे पापी, रोज करी जांदे पाप कदे मांगे नहीं माफी। सब लोग बने खूनी, अब रहा क्या है बाकी। बैठ के स्टूडियो में एसी की हवा खा के, टीचर्स को बोलते हो दो कौड़ी का आके। हम डिजिटल बोर्ड पे जो चाक घिस रहे हैं, उससे देश के गरीब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तुम टीआरपी के चक्कर में चिल्लाती हो रोज, हम रातों को जाग के बनाते हैं नोट्स। पेपर लीक पे तुम चुप्पी साधे बैठे हो, और सेट जो दिखाए उसे ड्रामा कह रहे हो। सुनो मैडम ये ध्यान दो, कौड़ी का नहीं है जो तुमने कहा, वो बात जरा भी सही नहीं है। तुम कैमरे के पीछे से बस शोर मचाती हो, हम बच्चों का भविष्य उनकी तकदीर बनाते हैं। डिजिटल क्रांति है ये रुकेगी नहीं, टीचर्स की ये फौज अब झुकेगी नहीं। तुम कहती हो मिनियंस, हम कहते हैं गुरु, जब तुम सोती हो हमारा क्लास होता शुरू। गांव गांव कस्बों तक शिक्षा को पहुंचाया, महंगी कोचिंगों का जो था घमंड वो गिराया। लाखों का जो कोर्स था वो मुफ्त में जो बांटा, इसी बात ने क्या तुम्हारे ईगो को काटा। तुम पूछती हो नॉलेज और औकात क्या हमारी, करो स्टूडेंट्स की जो दुआएं हैं वो साख है हमारी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर तुम्हारा नीचे है, फिर भी उंगली उठाती हो जो देश को सींचे है। पेपर लीक हुआ तुम ढूंढ रही थी एंगल, हम सड़कों पे लड़ रहे थे संभाल रहे थे दंगल। स्टूडेंट का जो दर्द है वो तुम क्या जानोगी,
टीआरपी की भूखी हो तुम सच ना मानोगी। तो सुन लो ध्यान से ये सोशल मीडिया का दौर है, अब जनता समझदार है ना जनता अब कमजोर है। तुम डिबेट में बिठा के बस मुर्गे लड़ाओ, हम चले हैं पढ़ाने तुम जाके टीआरपी कमाओ। ये कलम की ताकत है ये माइक से ना डरेगी, टीचर्स की ये आवाज अब हमेशा गूंजेगी। 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं ये करोड़ों का विश्वास है। जय हिंद जय भारत। क्लास खत्म अब जाकर न्यूज चलाओ। में जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। पैसे वाले एजुकेशन के चीफ हो जाते, नीट जैसे एग्जाम रोज लीक हो जाते, गरीबों की लाइफ बर्बाद करते, एजुकेशन के नाम पे है धंधा चलाते। ये जनता के नौकर हैं ये भूल जाते हैं, देश के भविष्य पर ही लाठियां चलाते हैं। यूथ हार जाते हैं जो चारों ओर से हाथ लेके रस्सी पंखे से झूल जाते हैं। तुम झूठे कलाकारों को सपोर्ट करते, ये तुमको कभी भी ना सपोर्ट करेंगे। तुम इनके बर्थडे पे लाखों पोस्ट कर दो, ये तेरे हक के लिए ना कोई पोस्ट करेंगे। जागेगा जो यूथ तभी बदलेगी रीत, हक मांगते हैं अपना ना मांगते हैं भीख। जब ओम वीर काला गोरा सच लिखेगा तभी आने वाली पीढ़ी एजुकेट मिलेगी। यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलेगी, तेरा नाम लेके गालियां गरेट मिलेंगी। सच बोलने से तेरे बैरी बढ़ेंगे, तेरी बढ़ती तरक्की तेरी हेट बनेगी। लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख भी नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ। यदि वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। मौन रखकर तुम कतार में सबसे पीछे खड़े हो सकते हो, पर याद रखना चुप्पी भी एक बड़ी गवाही होती है। अंधेरे में सो जाना आसान है पर मसाल बुझाना पाप है। तुम सवेरा ला ना सको तो कम से कम रात का साथी मत बनो। एक बात जहन में रखना, वो जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है वो कोई फरिश्ता नहीं है, वो तुम्हारी ही परछाई है जिसने तुम्हें सालों पहले दफन कर दिया था। आज अगर तुमने उसका साथ नहीं दिया तो कल जब तुम मुसीबत में गिरोगे तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने ही रक्षक का गला घोट दिया है। सावधान रहो, खिड़की के बाहर खड़े उस साये को देखो, वो तुम्हारी बारी का इंतजार कर रहा है और अब तुम अकेले हो। रखा मुझे बिस्तर पे पानी से नहलाया गया, कपड़ों का शौकीन था तो कफन मेरा लाया गया। ज्यादा कुछ समझ मुझे आ ही ना रहा, मानो मेरी ईद हो आज जैसे ही सजाया गया। लेकर मेरा जनाजा कुछ चल पड़े लोग, देखी मैंने कब्र मेरी उड़े मेरे होश। रखा मुझे कब्र में और सामने अंधेरा, बस मन में ख्याल आ रहा खुद को दुनोच। ना कोई होता दोस्त यहाँ ना ही होते रिश्ते, मन मेरा घुट रहा था आए दो फरिश्ते। बोल तेरा रब कौन, बोल तेरा दिन क्या, बोल कुछ पाया नहीं मैं बोलना ही भूल गया। बोले मुझे फरिश्ते अब दोज़ख तेरा रास्ता है, जलेगा तू आग में अब दर्द तेरा नाश्ता है। बोला था ना खुदा ने तू बचना बुरे काम से, सुनी नहीं खुदा की तो कई को अब तू कांपता है। फरिश्ते फिर बोल पड़े ज्यादा ना तू बोल, यहाँ काट देंगे जीप तेरी मुंह को ना तू खोल। यहाँ भेजा था ना दुनिया में कमाने सवाब, तुझे क्या ही किया दुनिया में बैठकर अब सोच। यहाँ खुदा आओ ले चलूं तुम्हें मैं अपना हिंदुस्तान, यहाँ रहते हिंदू सिख और ईसाई मुसलमान। जहाँ धर्मों में जातियों में लड़ता इंसान, वो प्यारा सा देश मेरा ठहरा हिंदुस्तान। आम बात हो गया रेप मर्डर करना, सालों लग जाते जस्टिस के लिए लड़ना। गुनहगार को प्रशासन का डरना, नेता बैठा कुर्सी में उसको कुछ खबर ना। कोई जाता माउंटेन पे बनाता रिकॉर्ड, कोई बना यूट्यूबर नेताओं से अवार्ड। युवा के नजर में इन्फ्लुएंसर बना गॉड, ये है नए भारत के देखो तुम थॉट। बच्चा बच्चा जाने शाहरुख और सलमान को, जानते न सरहद पे लगे उस जवान को। मारता आपस में इंसान ही इंसान को, आपसी लड़ाई में लाएंगे धर्म जात भगवान को। 295 इंडिया सेफ गर्ल सॉन्ग। ओके। छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो जाते, 4 कैंडलें जला के फिर लोग सो जाते। रावण के पुतले जलाते सान से, पर ऐसे पापियों को क्यों ना जिंदा जलाते। जो बहनों को छेड़े उसे मार मिटा दो, चाहे नेता का हो बेटा गोली मार मिटा दो।
कैंडलों से जस्टिस नहीं मिलता, छोड़ कैंडलों को हाथ तलवार उठा लो। जो ऐसे पापियों को भी न फांसी मिलती तो काहे का कानून और कैसा संविधान। जो सच बोलने से कुछ हो जाए मुझे, ना जस्टिस के बोर्ड लेके छोड़ना निशान। जस्टिस नहीं रिवेंज लेना है, भ्रष्ट लीडरों को जड़ से उखाड़ देना है। पुलिस दरिंदों को बचाए हुए है, गर दे दे छूट हिस्ट्री क्रिएट मिलेगी। यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलेगी, तेरा नाम लेके गालियां गरेट मिलेंगी। सच बोलने से लोग अनफॉलो करेंगे, तेरी बढ़ती तरक्की तेरी हेट बनेगी। क्या बोलते कॉकरोच लोग, इस गाने की सच्चाई तुम सह नहीं पाओगे। जिसे आइडल मानते हो ये गाना उसी के लिए है। ना किसी नेता का कोई सपोर्ट है, अभिनेता का एक भी ना पोस्ट है, ना कैरी मीनाटी का आया कोई रोस्ट है। तेरे आइडल है गायब जैसे घोस्ट है। कहा है वो एक्टर वो डायरेक्टर, कॉकरोचों ने भरे जिनके फिल्मों के थिएटर। तेरे ही वजह से भरे मैच के स्टेडियम पर कभी बोला नहीं कोई भी क्रिकेटर। यूथ और सिस्टम के बीच का तंटा है, ना बोला डिवाइन ना कभी बनता है। टी शर्ट टैटू पाके खूब गए कॉन्सर्ट, आज तेरे लिए इनके हाथ में घंटा है। देखने गया ओजला एट टेनी कॉस्ट पे, आज तेरा पॉप सिंगर कहा हुआ लॉस्ट बे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने को जाता वो हीरो, तुझे देख के हुआ एग्जॉस्ट पे। तू नहीं जाएगा तो स्टेडियम में गम है, तेरे बिना फिल्मों की कमाई भी कम है। बंद कर देखना इनके मैच फिल्म कॉन्सर्ट, बता दे इनको कितना यूथ में दम है। तेरे ही वजह से भारत की पहचान है, पढ़ेगा तो बढ़ेगा मेरा हिंदुस्तान है। तेरे ही वजह से भारत की पहचान है।